namaste and welcome to another video. In this video we are going to talk about how do you write an answer as a law student. तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हमारे अनसॉल्व रह जाते हैं. हम आंसर लिख लिख के एग्जाम में बार बार नंबर ना पाकर भी रियलाइज करते हैं कि मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं. So a lot of times you have already written all the content that is required, but maybe the structure is the issue. And in this video we are going to precisely answer what should be the structure of your answers. Alright, so the structure and answer points that are we going to discuss are relevant and workable for all kind of law related examinations, be it your college exams, judiciary, APO के एग्जाम्स हो गए, बार के एग्जाम्स हो गए, किसी भी प्रकार का अगर लॉ का आपका पेपर है तो वो आंसर स्ट्रक्चर जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, इट विल बी रेलेवेंट फॉर ऑल. ऑलराइट, सो व्हेनेवर यू राइट एन आंसर, द आंसर मस्ट हैव 5 components compulsorily. The first one is preface. हर आंसर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं that if you do not mention, you're not marked negatively, but if you mention, you are definitely given extra points. Preface, or what we call as introduction, is one of them. I know that we've all given boards, we've all seen that this is important, but sometimes giving the introduction in a certain manner is important. For example, कोई भी अगर मैं क्वेश्चन आया बहुत वेगली अगर आप आंसर कर रहे हो, उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हो, तो दैट विल नॉट बी वेरी कैची और sufficient as an introduction. Like जैसे किसी चीज़ को पूछा गया तो आपने definition से start किया. How about if you start with a little history in 1 or 2 line, all right? या फिर the best way to introduce any answer of any subject of the law subjects, law papers, is to start or relate that concept with constitution. अच्छा, इस वीडियो को भी बनाने के लिए मैंने विनीत भैया की हेल्प ली है. थैंक्स टू विनीत भैया. ठीक है, तो आप जो भी चीज़ें सुन रहे हो ये एक्सपीरियंस बेस्ड है. भैया हैज़ बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑल हिज कॉलेज लाइफ, तो यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट द होल स्ट्रक्चर दैट वी डिस्कस हियर. ठीक है, तो वेन एवर यू राइट एन आंसर और वेन एवर यू इंट्रोड्यूस योर आंसर, ट्राई टू रिलेट कॉन्स्टिट्यूशन विथ एनी पेपर दैट यू हैव राइट नाउ. लाइक जैसे अगर टॉर्ट्स का भी पेपर है तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर दो, कॉन्ट्रैक्ट्स का है तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर दो, अगर आप CRPC पढ़ रहे हो, अगर मतलब व्हाटएवर द सब्जेक्ट इज, if you can अच्छे से connect it with constitution, then make sure you are introducing your answer with constitution related point. For example, if there is a question on cheating, तो हम कैसे introduce कर सकते हैं is that constitution grants all the citizens some fundamental rights. Right to fair trial and rights against ex post facto law are also a part of these fundamental rights. And BNS, क्योंकि cheating BNS में ना, and BNS is a reflection of it. Section this deals with cheating, और ऐसे करके आप चालू कर सकते हो. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल. तो इस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से फ्रेम करना है. देन सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज द लॉ, विच इज जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसका जो लॉ एग्जैक्टली एप्लीकेबल है वो आप यहाँ समझाओगे. जो चीज़ जैसे चीटिंग पूछी गई है तो चीटिंग की डेफिनेशन क्या है वो आप यहाँ समझाओगे, किस सेक्शन में डील होती है वो यहाँ समझाओगे. अगर आपको लिखना है BNS का और फिर आपको IPC का अगर लिखना है रेफरेंस के लिए तो वो आप यहाँ समझाओगे. तो जो भी लॉ का पॉइंट है, बेसिक मेन जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप इस सेकेंड पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर के लिखोगे. एंड इट शुड बी क्लियर कि हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि हॉच पॉच करके सब लिख दे. इंट्रोडक्शन लिखो, 1-2 लाइन छोड़ दो, फिर आपका इंट्रो लिखो, मतलब फिर आपका लॉ वाला पॉइंट लिखो. ठीक है, देन now we come on to the third part of the structure, that is example or essential. If the paper or if the question is theory based question, then you write an example, all right, give an illustration. But if the question is practical based, then you mention ingredients कि ये essentials होते हैं cheating के, ये इस situation में meet हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, and then you justify your answer. Fourth is important to mention case laws. तो एक मिथ सी है कि जितने ज़्यादा आप केसेस लिखते जाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, कि मैंने 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 10 लिख देते हैं भाई बच्चे. तो वो नहीं करना है अनटिल अनलेस हाँ आपसे वो ट्रेस करने के लिए बोला गया है टाइमलाइन. ठीक है, एवोल्यूशन ट्रेस करने के लिए बोला गया है, सिर्फ तब आप 10-15 केस मेंशन करते हो. या फिर व्हेन यू नो दैट दिस टीचर एक्चुअली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केसेस इन दी पेपर, क्योंकि फिर से ये होता है ना, आपने अगर ये वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हमने डिस्कस किया कि कैसे टीचर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमको आंसर लिखना होता है. ठीक है, तो बस यहाँ पर भी हमको यही करना है.
हमें ये देखना है कि क्लास में पढ़ाते टाइम अगर वो बहुत ज़्यादा केसेस के थ्रू पढ़ा रही हैं तो फिर हमें कॉलेज के एग्जाम के लिए आंसर में केसेस ज़्यादा भरने ज़रूरी हैं। वरना अगर आप एक बेसिक स्टैंडर्ड लॉ का एग्जाम दे रहे हो, बी इट कोई सा भी कॉम्पिटिटिव या लॉ बेस्ड एग्जाम, उसमें आप 2 से 3 केस लॉज लिखोगे एंड यू विल बी गुड। एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज a conclusion, wherein if it is a theory type of a question then conclusion may not really be relevant, but अगर आप लिख सकते हो किसी तरीके से फ्रेम करके तो एक concluding line लिख दो। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो फिर जो मेन पॉइंट नहीं होता कि डिसाइड या फाइनली आपने क्या कंक्लूड किया, आपने इंग्रेडिएंट समझा दिए, कहाँ डेल्ट है वो समझा दिया, सब कुछ समझा दिया, केसेस बता दिए। अब यहाँ जो मेन डिसाइड वाला पॉइंट है उसमें हाईलाइट करके लिखो, हाईलाइट मतलब पेन से ही हाईलाइट, इसे अंडरलाइन करके या कैपिटल लेटर्स में, बिकॉज हाईलाइटर इज ऑब्वियसली नॉट अलाउड। तो उसमें फिर आप ऐसे करके उस चीज़ पे फोकस कराओ कि आपने क्या फाइनली डिसाइड किया है या आप क्या फाइनली कंक्लूड कर रहे हो, उसको 2-3 लाइन में लिख दो एंड दैट विल बी इट। ये तो था स्ट्रक्चर, ठीक है। 5 पॉइंट्स हैं, प्रीफेस, लॉ, एसेंशियल्स या एग्जाम्पल, केस लॉज एंड फाइनली कंक्लूजन, ठीक है। नाउ लेट अस डिस्कस सम फ्यू पॉइंट्स हियर एंड देयर जो आंसर राइटिंग में इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज, आप आंसर जितना ईजी टू चेक बनाओगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बेटर आएंगे, ठीक है, और उतना ही बेटर वो आंसर बन जाएगा, क्योंकि टीचर इज एट द ईज, उसको फटाफट एग्जैक्ट पॉइंट्स जो उन्हें चाहिए हैं वो दिख रहे हैं, आपके कीवर्ड्स हाईलाइटेड हैं, आपने अंडरलाइन किया एग्जैक्ट सेक्शन जो वो चाह रही हैं, केस लॉ पे आपने हाईलाइट किया है, इसके इंग्रेडिएंट्स आपने अच्छे से ले डाउन किए हैं, डिसाइड किया कि आपने उसको अच्छे से डब्बे में बना दिया है, तो फिर ये हो जाएगा कि आपको मार्क्स ईजिली मिलेंगे। अब आप वही चीज़ हौच पौच करके लिख दोगे तो टीचर का उसको 300 पेपर्स चेक करने हैं, तो शी विल नॉट और ही विल नॉट पे सो मच अटेंशन कि वो एक एक लाइन में अंदर घुस घुस के पढ़े कि इस बच्चे ने क्या लिखने की कोशिश की है, ठीक है। तो जितना फैला के लिख सकते हो उतना फैला के लिखो। स्टार्ट एवरी आंसर फ्रॉम अ न्यू पेज विच इज़ वेरी बेसिक। कटिंग और ओवर राइटिंग को अवॉइड करो अपने पेपर्स में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट देती है कि ये बच्चा शायद इस बारे में कन्फ्यूज था। अगर बहुत माइन्यूट सी डिटेल है ना कि मतलब चल जाएगा कि उसको अगर मैं ना भी ठीक करूँ तो ऐसे ऐसे करके वो इग्नोर हो जाएगा, तो फिर मत काटो, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा मेजर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है तो, वरना अवॉइड करो जितना भी कटिंग या आंसर में स्क्रिबलिंग हो सकता है। ऑल्सो मेक श्योर कि आप जब आंसर स्टार्ट कर रहे हो ना उसके पहले अपनी आंसर शीट के पेरिफेरी में दोनों साइड लाइंस बनी हो। इस साइड तो मोस्टली बनी ही आती है ना, तो इस साइड नहीं होती हैं, तो फिर वो वहाँ पे आप एक से पतली सी खींच लो, बहुत मोटी मत खींचो कि टीचर को लगे कि स्पेस मतलब भरा भरा दिखाने के लिए ज़्यादा मोटी खींच ली, बट ऐसे पेरिफेरी में एक ऐसी मार्जिन बना लो। और उसमें क्या होता है ना, समटाइम्स टीचर्स कैसे मार्क करती हैं कि वो वहीं के वहीं देखती है एक पॉइंट तो वहीं पॉइंट दे देती हैं। अब अगर आपने पूरा लिख रखा है, पूरा पेज कवर कर रखा है, तो दे विल नॉट हैव अ स्पेस टू इजीली मार्क। फिर क्या होगा, दे विल क्यूमुलेटिवली रीड योर ऐसे पूरा आंसर एंड देन क्यूमुलेटिवली मार्क यू। तो हो सकता है इस केस में आपको 1-2 पॉइंट जो एक्स्ट्रा मिल सकते थे वो ना मिले, ठीक है। तो फिर एक मार्जिन बना लो। और ये भी होता है कई बार, पता है कि नीचे से पानी गिर गया तो थोड़ा सा गीला हो गया तो पेपर गीला हो जाता है, या फिर वो आने करने उठाने में ऐसे फट जाता है तो आप आंसर फट जाए, तो वो बेटर है कि आप एक पेरिफेरी ड्रॉ कर लो। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ऊपर लिखो, उनको थोड़ा हाईलाइट करो और अंडरलाइन करो, दैट इज, ठीक है। एंड ऑलवेज ट्राई टू नॉट लीव एन आंसर अनआंसर्ड अंटिल अनलेस देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग व्हिच डजंट हैपन इन थ्योरी पेपर्स, ठीक है। तो मेक श्योर दैट यू डू दिस। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक ये वीडियो जिसमें वी डिस्कस्ड हाउ डू यू स्टडी, देन मेक श्योर you check this out. In the next video we will mostly be discussing about how do you read bare ads, and we will also discuss कि LLM किसको करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है LLM की इंडिया में, and all of these things. And for more law related content you can subscribe to the channel. Check out the channel if you like the content, then consider subscribing. Thank you so much for this video. I will see you on the next Monday. Till then keep watching. Namaste.